Now I am talking about Hardy-Weinberg equilibrium. It is the fundamental law of population genetics which states that the gene and the genotype frequencies in a Mendelian population remains constant generation after generation if there is no selection, mutation, migration or random drift. It is used to compare allele frequency of a given population over a period of time. तो ये बताता है कि जीन और जीनोटिपिक फ्रिक्वेंसी जो होती है मैंडेलियन पॉपुलेशन में हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। एक जनरेशन में जो होती है वही नेक्स्ट जनरेशन में होती है। अगर कोई सिलेक्शन ना हो, म्यूटेशन ना हो, मींस जीन में चेंजेस ना हो, सडन माइग्रेशन ना हो या रैंडम ड्रिफ्ट ना हो जाए, तो यहाँ इसको यूज़ क्या कहाँ करते हैं, जहाँ पर एलील की फ्रिक्वेंसीज़ को हमें कंपैरिजन करना होता है टाइम के साथ, वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। हार्डी-वीनवर इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस आर पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जीनोटाइप है। p प्लस क्यू जहाँ पर इक्वल 1 के है एलिल, वेयर p इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलिल, q इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलिल, p स्क्वायर इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, q स्क्वायर इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स and 2pq is the frequency of heterozygous individual। तो क्या है हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल? हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल state that the gene and genotype frequencies in a Mendelian population remains constant generation after generation if there is no selection, mutation, migration or random genetic drift। Hardy-Weinberg's principle provide a simple mathematical model of how genetic equilibrium can be maintained in a gene pool। The totality of allele of every gene in a population is the gene pool of that population। मतलब किसी पॉपुलेशन में जो टोटल नंबर ऑफ जीन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीन पूल बोलते हैं। और किसी इंडिविजुअल में जो टोटल नंबर ऑफ जीन होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे जीनोम बोलते हैं। Each individual carries some of the allele, but individual come and go. However, the total gene pool continue as constant representation of a population। Changes in the specific frequency of a particular alleles constitute the raw material of evolution। At first, modest attention in allele frequency does not produce observable changes in a population, but over long period of time, such changes produces marked aberrations, alterations in the characteristic of a population। A better understanding of slow way in which shift in a gene, that is allele frequency, may generate the pattern of evolutionary changes come from a study of hypothetical population in which no such shift in gene frequency occur। Using the genetic principle of Mendel, G. H. Hardy and W. Weinberg determined that the frequency of allele and even the ratio of genotype tend to remain constant from one generation to the next in sexually reproducing populations under certain conditions। In such a stable population, gene frequency follows simple law of probability। Since allele frequency tend to remain constant from generation to generation, departure from this constancy help to expose selection pressure operating the population। तो हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं? While the Hardy-Weinberg equation provide a simple mathematical model of how genetic equilibrium can be maintained in a gene pool, its major application in population gamete is in calculating allele and genotype frequencies। With two homozygous organisms, one dominant for allele A, capital A, and one recessive for allele small a, all offspring in F1 will be heterozygous कैपिटल ए स्मॉल ए। तो अगर किसी पॉपुलेशन में दो होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि एक डोमिनेंट कैपिटल ए है और दूसरा रिसेसिव है यानी स्मॉल ए है, तो उसके जो F1 जनरेशन बनेगी वो हेट्रोजाइगस होगी कैपिटल ए स्मॉल ए। इफ़ द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील कैपिटल ए इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल P एंड द रिसेसिव एलील small a by the symbol Q, the nature and frequency of the genotype produced by क्रॉसिंग द F1 जीनोटाइप वुड बी। तो अगर हम देखें कि डोमिनेंट एलील ए जो है उसको रिप्रेजेंट करें उसकी फ्रीक्वेंसी को P सिंबल से और रिसेसिव एलील स्मॉल ए को Q सिंबल से रिप्रेजेंट करें,
तो नेचर जो है फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप का F1 जनरेशन में, तो हमें कैसे देखेगा, F2 जीनोटाइप ए जो है कैपिटल ए उसका हो गया p², और जो रिसेसिव वाला है वो स्मॉल ए उसका हो गया q², होमोजाइगस रिसेसिव है वो। और जो F1 जनरेशन वाला है यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई 2 कैपिटल ए स्मॉल ए। F2 जनरेशन में 2 ऐसे भी बनेंगे ना जो हेट्रोजाइगस होंगे, एक तो प्योर कैपिटल ए बनेगा, एक प्योर रिसेसिव फॉर्म स्मॉल ए बनेगा, और 2 ऐसे बनेंगे जो हेट्रोजाइगस होंगे कैपिटल ए स्मॉल ए। तो उनके निकालेंगे अगर हम फ्रीक्वेंसी तो 2pq हो गई। तो F2 जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट की p² और हेट्रोजाइगस की 2pq और होमोजाइगस रिसेसिव की q²। सिंस कैपिटल ए इज डोमिनेंट द रेशियो ऑफ डोमिनेंट, तो सिंस ए इज डोमिनेंट द रेशियो ऑफ डोमिनेंट टू रिसेसिव जीनोटाइप विल बी 3:1, जैसे कि हमने मेंडल्स लॉ में देखा था 3:1 आएगा रेशियो। द मेंडेलियन क्रॉस रेशियो ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप रिजल्टिंग फ्रॉम सच अ क्रॉस इट कैन बी सीन दैट दे आर रिप्रेजेंटेड इन फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी अगर इन सब की हम देखें तो कैपिटल ए जो है वो 1/4 हो जाएगा टोटल का, क्योंकि 4 ऑफस्प्रिंग बने हैं तो उसमें से बस एक ही है ना जो कैपिटल ए है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो वो 1/4 हो गया। इसी तरह स्मॉल ए भी तो 4 में से एक ही बना है जो होमोजाइगस रिसेसिव, तो वो भी 1/4 हो गया। और 2 हमको हेट्रोजाइगस मिल रहे थे F2 जनरेशन में 2 कैपिटल ए स्मॉल ए वाले, तो वो हाफ हो गए कुल मिलाकर। In terms of genotypic frequency, the sum of the 3 genotype present in the population equal 1 or expressed in term of the simple P and Q। तो जीनोटिपिक प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो गई, अब कैपिटल ए वाला जो है वो हो गया, अगर P मानते हैं हम ए को तो p² हो गया, स्मॉल ए को अगर हम Q मानते हैं तो वो q² हो गया, और जो कैपिटल ए स्मॉल ए हैं वो 2 बने हैं तो वो हो गया 2pq, और ये सब किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो जो हमारी इक्वेशन आई वो क्या हो गई, p² + 2pq + q² = 1। तो इन मैथमेटिकल टर्म्स p + q = 1 इज़ द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंड p² + 2pq + q² = 1 इज़ द बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ द इक्वेशन, दैट इज़ p + q का होल स्क्वायर। तो अगर हम p + q का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, p² + q² + 2pq, यही आती है। टू समराइज, सिंस p = डोमिनेंट एलील फ्रिक्वेंसी और q क्या है यहाँ पे रिसेसिव एलील फ्रिक्वेंसी है, तो p² क्या हो जाएगा, होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप हुआ यहाँ पर। 2pq जो निकला हमारा वो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है, एंड q² = होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप। तो इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट ऑल एलील एंड जीनोटाइप फ्रिक्वेंसीज। तो हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करके निकाल सकते हैं, एक तो एलील फ्रिक्वेंसी हमारी हुई p + q = 1।